is Mandira. Welcome to Agla Sem, and today we are going to be studying Class 12, Chapter number 3, Meeting Life Challenges. Now, this chapter is basically about understanding the nature, types, and sources of stress. As you must have heard this word, it's used a lot in layman language. कि इसको stress हो रहा है या board exams का stress है, all those things. We will examine the effects of stress on psychological functioning, how getting stressed can affect how the way we think, the way we act, the way we feel. Okay, and then we will learn to cope with stress. There are several ways with which we can learn to adapt to stressful situations and make the best out of them. Okay, so all these and more things we are going to do while we do this chapter. So let's get started. First with the concept of stress, which comes under the main heading nature, types and sources of stress. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि what exactly is stress. Okay, so as I mentioned before also कि आपने ये जरूर सुना होगा that उसको इस चीज का स्ट्रेस हो रहा है या उसको इस बात का बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस है या फैमिली में स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. So what does the stress mean? As NCERT has described it, any kind of circumstance that exceeds your ability to cope is a stressful situation. मतलब जो भी situation आपकी equilibrium को disturb करे. अभी मैं आराम से बैठी हूँ, right? I am not feeling that much stressed. But maybe again, if smoke starts coming out of this room, God forbid, then I will suddenly my alarm bells will go on and it will disturb my equilibrium of making this video. So that will be a stressful situation for me because it's exceeding my ability to cope. ठीक है, तो हम आते हैं दो concepts पे that come under stress only: eustress and distress. Now, eustress क्या होता है? It is a term used to describe stress that is good for you and is one of a person's best assets for achieving peak performance and managing minor crises. That means that there is a certain kind of stress in your life that you need. अब जैसे मैं आपको वीडियो का एग्जांपल दे रही थी. Before this video, I was relaxing in my blanket, okay? But I know that, out there my videos are required. I need to go get something done today. So I got up, got dressed and started making the video. So this much stress that, I got worried ki, I have not made the video. I should finish my target for today. That much is required for me to get up out of my blanket. So there is a minimum amount of stress that we need in order to get up and start doing things, and that is called eustress, which is good for you. Okay, but the opposite of eustress is distress. Distress क्या होता है? Eustress has a potential of turning into distress. क्यों? Because the latter manifestation of stress causes body's wear and tear. अब for example मैं वीडियो बनाने बैठ गई, but if I plan on making 8 videos today, for example, that will really cause wear and tear in the sense कि मेरा गला खराब हो जाएगा. I will feel really tired. Even mentally I will be really tired because इतने सारे chapters मुझे एक ही दिन में पढ़ाने हैं. So this is called distress. Stress which is taken in a negative way, which is affecting you negatively. ठीक है? So eustress versus distress. So the beautiful definition of stress, distress or stress is given. तो जब हम stress बोलते हैं daily life में, we always refer to distress. Remember that. जिसका definition है the pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. For example, making 8 videos is exceeding my ability to cope. ठीक है? So that is an example of distress. Okay? Now we come to the nature of stress. तो इसमें एक related term आती है stress से, which is called strain. Strain मतलब खिंचाव in Hindi, and you should understand it also that way that strain is something that is used in context of something that is constricted. खिच हो रही है किसी जगह पे. ठीक है? So strain can be mental also, physical also. For example, if you keep running for one hour or half an hour, you will have strain in your legs. Similarly, if you keep studying for 6 hours straight, then you will have mental strain. Okay? So overuse से generally ये term associated होती है. तो stress जो है, it has been associated with its causes and its effects also. So जो हमारे ये सेलिए हैं, इन्होंने Hans Selye, given here on page number 52, he has described stress as non-specific reaction of body to any demand, but then many researchers have proposed that actually it is specific in the sense that जो भी stressor आपकी life में है, उसके specific ही आपका stress reaction होगा. So even stress reactions are of different kinds. Okay, so next we come to two uprisals that are given on page number 53.
दो टाइप के अप्राइजल्स दैट आर एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, प्राइमरी अप्राइजल एंड सेकेंडरी अप्राइजल. प्राइमरी में क्या होता है, रिफर्स टू परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरमेंट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस रहा है, फॉर एग्जाम्पल let's say that you were walking down the street and a really aggressive dog is coming towards you and he's barking. तो सबसे पहले you will notice, okay, this is a dog, the dog is a bit aggressive, he seems like he would bite me, right? So this stressor आप सोचते हो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. So as you can guess, this is a negative stressor because it has the potential to harm you. ओके, वर्सेस अगर आपको एक पिकनिक का इनवाइट आता है, देन दैट इज क्लियरली पॉजिटिव. ओके, या फिर अगर आपको एक पिकनिक से ज्यादा, बिकॉज द अदर एग्जांपल दैट कैन बी यूज्ड इज अ जॉब इंटरव्यू. सो मे बी इट्स गुड दैट यू गॉट अ कॉल कि आपका इंटरव्यू, यू हैव सक्सीडेड टू द इंटरव्यू राउंड, बट इट विल ऑल्सो कॉज यू स्ट्रेस इन अ पॉजिटिव वे. क्यों? बिकॉज इंटरव्यू में यू नीड टू परफॉर्म वेल टू डू बेटर थिंग्स. ठीक है, सो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इस टाइप के स्ट्रेसेस हो सकते हैं. सो डिसाइडिंग वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अप्राइजल. सेकेंडरी अप्राइजल क्या होता है? सेकेंडरी अप्राइजल इज द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज एंड वेदर दे विल बी सफिशिएंट टू मीट द हार्म. तो अब जैसे कि जॉब इंटरव्यू का आपको कॉल आ गया, इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेसर ओनली, बट देन यू आर ट्राइंग टू थिंक कि मैंने इस जॉब का जो एंट्रेंस दिया था उसमें मुझे कितना आता था, जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस कितना है, जो आपकी तैयारी है ना, दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी अप्राइजल, वेदर यू हैव द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस और नॉट. सिमिलरली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में यू हैव टू सी कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, हाउ मच ऑफ द सिलेबस यू हैव मास्टरी ओवर, विच सब्जेक्ट्स यू हैव मास्टरी ओवर. सो अपने आप को असेस करना वेदर यू आर एबल टू डील विद स्ट्रेसर और नॉट इज कॉल्ड सेकेंडरी अप्राइजल. ठीक है, सो दीज अप्राइजल्स आर वेरी सब्जेक्टिव एंड विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, वन ऑफ विच इज पास्ट एक्सपीरियंस. तो पास्ट में अगर यू हैव सक्सेसफुली डेल्ट विद स्ट्रेसर्स, देन इट विल बी ओके कि चलो आगे भी कोई स्ट्रेसर अगर आ रहा है, देन आई विल बी एबल टू डील विद इट. बट अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस में यू हैव नॉट बीन एबल टू डील विद स्ट्रेसर्स एज इफेक्टिवली, देन इट विल कॉज यू एडिशनल एंजाइटी एंड एडिशनल स्ट्रेस. ठीक है, सो one of the factors was past experience. The second factor is controllability. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे कि सोशलाइज करने में एंजाइटी होती है और आपको एक पिकनिक का इनवाइट आ गया, राइट, विद फ्रेंड्स, सो मे बी यू विल फील लॉट ऑफ स्ट्रेस कि आई हैव टू गो सोशलाइज विद पीपल, आई फील अ बिट एंग्शियस सोशलाइजिंग, बट the fact that you can cancel going to the picnic makes it less of a stressor कि it is an optional thing whether I go or not. Controllability है इन factors में, ठीक है, versus board exams में controllability नहीं है, because whether or not you are ready, the exam will definitely start from 4th, 5th May, whatever it is. ठीक है, तो that is the controllability factor. ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रेसेस हमारे एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, इंटरनल हमारी मोटिवेशन हो सकता है कि स्ट्रेसेस हैं कि आपको सोशलाइज करने में एंजाइटी हो रही है, आपकी मोटिवेशन नहीं आ रही तो तैयारी नहीं हुई. एक्सटर्नल होते हैं एनवायरमेंटल, नॉइज, एयर पोल्यूशन, और सोशल होते हैं ब्रेकअप विद अ फ्रेंड, लोनलीनेस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, तो इतने इतने टाइप्स के हमारे स्ट्रेसेस होते हैं. ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रेस जो है हमारी किन किन टर्म्स में वेरी कर सकता है. So first of all we're going to talk about intensity, low intensity versus high intensity. अगर आपके सामने एक डॉग आके खड़ा हो गया and you are feeling stress, that is lower intensity versus अगर आपके सामने एक शेर आके खड़ा हो गया and he wants to kill you. Okay, so low intensity हो गया डॉग and high intensity हो गया lion. Then duration क्या होती है? Duration मतलब short term versus long term. अब for example कल आपका एक प्री बोर्ड एग्जाम है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्योंकि कल के बाद वो स्ट्रेस रिजॉल्व हो जाएगा, बट बोर्ड एग्जाम इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बिकॉज इट विल नॉट हैपन अंटिल मे. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स. लेस कॉम्प्लेक्स कौन से स्ट्रेसेस होते हैं? जैसे कि आपके कोई रिलेटिव आ गए आपके घर पे एंड यू आर नॉट एबल टू यू आर नॉट एबल टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ चैप्टर जो आपको करना था पढ़ाई में. सो दैट इज अ लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसर बिकॉज जैसे ही वो अंकल जाएंगे आप अपना चैप्टर दोबारा कर सकते हो. लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आपकी फैमिली की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, बट यू गॉट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब दैट यू एब्सोल्युटली हेट. Now that is a complex stressor because you have to take care of the financial situation, you also have to manage your own mental health and physical health on the job. तो ये हो गया एक complex stressor. Predictability हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया. अच्छा, कंट्रोलेबिलिटी क्या था? सो predictability होती है unexpected versus predictable.
अब अगर आज आप स्कूल गए एंड टीचर सेड दैट कल ही टेस्ट लूंगी, तो दैट इज अ बिट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, है ना, तो आपको वो ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी प्रोवोकिंग होगा, स्ट्रेस प्रोवोकिंग होगा। अगर या फिर टीचर ने बोल दिया कि अभी टेस्ट लेना है, दैट इज मोर anxiety provoking rather than if something is predictable. Like, that, again, I'm using this example that your board exams are going to happen in May. So it is a predictable stressor. Okay. Obviously, more intense, prolonged and chronic, complex, unanticipated stressors have more negative consequences than less intense, short-term, less complex and expected stressors. ठीक है. So, अब हम next पे आ जाते हैं, signs and symptoms of stress. So, इसमें क्या है? The way we respond to stress varies depending upon our personality, early upbringing and life experiences, as we have discussed before also. ठीक है, तो इसमें हमारे सिम्टम्स होते हैं 3 टाइप्स के, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स. एज आई वाज डिस्कसिंग विद समवन एल्स आल्सो कि फिजिकल स्ट्रेसर्स कौन से होते हैं? पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ना. ठीक है. इमोशनल स्ट्रेसेस होते हैं आपका मूड स्विंग्स होना, दैट इज वन ऑफ द टिपिकल इमोशनल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. और बिहेवियरल सिम्टम्स आपके होते हैं इनएबिलिटी टू फंक्शन, दैट इज, और इनएबिलिटी टू राइट और शेकी बिहेवियर, ये सारा आपका बिहेवियरल सिम्टम होता है. ठीक है. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे. फर्स्ट जो हम कैटेगरी करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, दैट इज फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस. ठीक है. फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या क्या होता है? हम अभी मैं जस्ट वही बताने वाली थी कि दिल्ली में एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस लाइक दिस, पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज, हीट एंड विंटर कोल्ड. सो एक्सट्रीम कोल्ड सर्कमस्टांसेस, एक्सट्रीम हीट, पोल्यूशन, क्राउडिंग, ये सब चीजें होती हैं हमारी फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में जो इंक्लूडेड होती हैं. एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये फिजिकल, हाँ, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स है. तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में और क्या हो सकता है? इंक्लूड हमारा डिजास्टर सच एज फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स. फिजिकल में क्या होता है? न्यूट्रिशियस डाइट, इंजरी, जो हमारी है, फेलियर टू गेट इनफ स्लीप, ऑल दीज आर फिजिकल फैक्टर्स, डाइट, स्लीप टाइप के. ठीक है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस में भी हमारी 4 टाइप्स के स्ट्रेसेस डिस्कस्ड है. फ्रस्ट्रेशन, सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन इज ब्लॉकिंग ऑफ अ नीड. पढ़ा था ना हमने 11th क्लास में, वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यू रियली वांटेड टू स्टडी अ चैप्टर बट देन वन ऑफ योर अंकल्स केम टू योर हाउस एंड योर मॉम वाज लाइक स्पेंड टाइम विद देम. दैट इज फ्रस्ट्रेशन टू फुलफिल अ नीड. नहीं हो पा रहा है उन अंकल की वजह से. Okay, next is conflict. You may want to watch Netflix right now, but the more important thing for you might be to do this chapter. So, or watch this video. So, this is conflict between 2 needs. ठीक है. इंटरनल प्रेशर होता है आपको जो अपने आप में बिल्डअप कर रखा है, जैसे कि मुझे 97% लाना है, दैट इज इंटरनल प्रेशर. एंड सोशल प्रेशर होता है द सोसाइटी व्हाट इट इज आस्किंग यू टू डू, कि मिनिमम इतना 95% में आएगा तो वो अच्छा है, अदरवाइज नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, बट इट इज अ काइंड ऑफ सोशल प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक ऑफ सोशल स्ट्रेस. सोशल स्ट्रेस में क्या होता है? डेथ और इलनेस इन द फैमिली, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, ट्रबल विद नेबर्स, या फिर ये सारे एग्जांपल्स है हमारी सोशल स्ट्रेस के. आपकी फैमिली में रिलेशंस, आपके पेरेंट्स के साथ, और वेदर समवन इज सिक, और इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम कोई आपका रिलेटिव है जो कि सिक है, या नेबर्स परेशान कर रहे हैं, ऑल दिस कम्स इन द सोशल स्ट्रेस कैटेगरी. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस सम सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज लाइफ इवेंट्स. लाइफ इवेंट्स मतलब कि डेली लाइफ में जो भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं दैट आर कॉजिंग अपहीवल. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकअप ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और यू आर मूविंग टू अ न्यू सिटी, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेसर. न्यू कॉलेज में जा रहे हो, न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, नया कोर्स पढ़ना पड़ेगा. ऑल दीज आर लाइफ इवेंट्स दैट हैव द केपेबिलिटी टू बिकम स्ट्रेसर्स एंड बिकम स्ट्रेस प्रोवोकिंग. ठीक है. हैसल्स होती हैं, आपका रोड में ट्रैवल कर रहे हो, नॉइजी सराउंडिंग है, मेट्रो में बहुत भीड़ है, और इलेक्ट्रिसिटी वाटर शॉर्टेज, आपका ट्रैफिक का प्रॉब्लम है ना, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कम्यूट कर रहे हैं, बस में भीड़ है, ये सारी जो चीजें हैं ये होती हैं हमारी हैसल्स. एंड ट्रोमैटिक इवेंट्स कौन से होते हैं? ट्रोमैटिक इवेंट्स आर रोड एक्सीडेंट, रॉबरी, अर्थक्वेक, सुनामी. दीज आर एक्सट्रीम इवेंट्स दैट आर केपेबल ऑफ कॉजिंग ट्रॉमा. ओके. नेक्स्ट वी कम टू द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल इफेक्ट्स की. ठीक है. इमोशनल इफेक्ट्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट मूड स्विंग्स, इरेटिक बिहेवियर, और एलियनेशन मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लेना फ्रॉम द फैमिली, और एंजाइटी, डिप्रेशन, इंक्रीज्ड फिजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल टेंशन, ये सारे हमारे इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन से होते हैं? हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाना, और स्लोइंग डाउन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग प्रॉब्लम्स, सांस फूलना है ना, palpitation is a very good example of physiological effect of stress.
सो यू मस्ट हैव बीन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिफोर. जैसे एग्जाम भी देने जाते हैं तो भी वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है. सो ऑल द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन योर बॉडी, भूख मर जाना, ऑल दीज आर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. ठीक है. कॉग्निटिव इफेक्ट्स होते हैं कि आप कभी बहुत स्ट्रेस्ड होगे तो आप नोटिस करना, if some text appears on your phone, if you are in a very stressful situation, you are not even able to read that text properly. ठीक है. इसको कहते हैं मेंटल ओवरलोड. या फिर अगर आपको कभी बहुत स्ट्रेस फील हो रहा हो तो ट्राई टू रीड एन एक्सेल स्प्रेडशीट, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या ये सब चीजें होती है ना कॉम्प्लिकेटेड वाली, ये हमारा माइंड कर ही नहीं पाता उस टाइम, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज एन ओवरलोड इन आवर हेड. ओके. लास्ट इज द बिहेवियरल इफेक्ट्स. इसमें आता है आपका ईटिंग लेस और भूख मर जाना, स्लीप नहीं आना, इंक्रीज इनटेक ऑफ कॉफी और कैफीन. ठीक है. एनीथिंग दैट कंटेन्स कैफीन और ट्रैंक्विलाइजर्स यानी कि स्लीपिंग मेडिकेशन ज्यादातर यूज करना. ठीक है. दीज आर बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. सो नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस एंड हेल्थ. ठीक है. इसमें एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नआउट इज डिस्क्राइब्ड. बर्नआउट क्या होता है? जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इतनी देर तक हो कि आपकी बॉडी के सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद उसको कहते हैं बर्नआउट होना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 किसी की या 9 to 9 किसी की जॉब है 12 घंटे की. सो दैट पर्सन इज वेकिंग अप एट 7 AM, गेटिंग रेडी, पैकिंग लंच, 9 o'clock वो निकल रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, 9 o'clock वापस आ रहे हैं. उसके बाद रात को आके टाइम भी नहीं है रिलैक्स करने का, काम वाम करके अपना 11 बजे तक सो रहे हैं, 12 बजे तक, या फिर अगेन दे आर वेकिंग अप एट 6 और 5, जो भी है उनका 7 o'clock जितने बजे उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है. ठीक है. डाइट प्रॉपर नहीं जा रही है, सही टाइम पे नहीं जा रही, और ये पूरा शेड्यूल मंडे से लेके फ्राइडे या सैटरडे तक चल रहा है, एंड देन दे डोंट हैव द टाइम टू रिलैक्स. सो अगर ये शेड्यूल 1 महीने तक चलता रहता है, देन दे विल फील सच एन एग्जॉस्शन कि वो ये सोचेंगे कि मैं ये जॉब ही छोड़ देता हूँ. दैट स्टेज इज कॉल्ड बर्नआउट. ठीक है. इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपकी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप बर्नड आउट कितनी देर बाद फील करते हो. मे बी सम पीपल विल फील बर्नड आउट इन 2 days, some people will feel after 2 months, या some people will feel after years. ठीक है. So it depends on your own capacity. So this completes the first part of the chapter. So next we are going to do the topic of general adaptation syndrome. So now we are going to do general adaptation syndrome. इसमें क्या होता है? इसमें होती है 3 stages. ठीक है. First of all is the alarm reaction stage. Alarm reaction stage का होगा the presence of a noxious stimulant or stressor leads to the activation of the adrenal pituitary cortex system. This triggers the release of hormones producing stress response. तो ये फर्स्ट स्टेज है अलार्म रिएक्शन स्टेज, मतलब जिसमें आपको एक्चुअली पता चला कि स्ट्रेसर है क्या. अब इसमें हम कंटिन्यूअसली एग्जांपल लेंगे ऑफ अ aggressive dog appearing in front of you. ठीक है. So when you realize that the dog is in front of you and it is barking and it is appearing that he will bite you. ये हो गया हमारा अलार्म रिएक्शन स्टेज. और ये देखते ही आपके दिल में you started experiencing palpitation, increased heart rate, you started sweating. All these are part of the alarm reaction stage. Next आता है हमारा resistance stage. If the stress is prolonged, the resistance stage begins. The parasympathetic nervous system calls for more cautious use of the body's resources and the organism makes effort to cope with the threat. अब क्या है, आपको लग रहा है कि अगर मैं हिला तो ये डेफिनेटली मुझे मेरे पीछे भागेगा और मुझे काट लेगा. सो यू हैव टू स्टे देयर फॉर 2 minutes until the dog relaxes. ठीक है. दिस स्टेज इज द रेजिस्टेंस स्टेज वेयर यू हैव अप्लाइड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ योर बॉडी ऑन टू डीलिंग विद दिस डॉग हु इज अग्रेसिवली लुकिंग एट यू. ठीक है. दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रंटेशन, मतलब आमना सामना. ओके. थर्ड इज एग्जॉस्शन. अब खड़े खड़े आप भी थक जाओगे एंड बिकॉज यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपका माइंड और बॉडी भी जल्दी गिव अप कर देगा. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि continued exposure to same stressor or additional stressors drains the body and resources and leads to the third stage of exhaustion. Ultimately you will think छोड़ यार मैं यहाँ से भाग जाता हूँ या मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि ये स्ट्रेसर मेरा खत्म हो जाए. That is the exhaustion stage. ठीक है. तो अलार्म रिएक्शन में आपका ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ से आपका ये वाला ग्राफ गया जो आपका रेजिस्टेंस स्टेज में आ गया और रेजिस्टेंस स्टेज से आगे इट फेल डाउन इन द एग्जॉस्शन. ठीक है. फिर से नीचे चला गया. फिगर 3.3 यू कैन रेफर टू ऑन पेज नंबर 59. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज दैट ऑफ स्ट्रेस एंड इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच दैट्स ट्राइंग टू डील विद लिंक्स बिटवीन द माइंड, ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम. मतलब इट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर आवर माइंड, आवर ब्रेन एंड आवर इम्यून सिस्टम्स आर कनेक्टेड. ऑब्वियसली आपको बहुत लोगों ने ये बात बोली होगी कि आपकी लाइफ में जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है या पोल्यूशन लेवल से भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है. सो लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन फोकस्ड ऑन दिस एंड इट्स एक्चुअली ट्रू, साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट
Stress can actually lower your immune system and make you susceptible to more disease. For example, diabetes or high blood pressure. These two diseases are very 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 likely to happen to you if you have been in a stressful situation or if your life has been stressful. ठीक है, या you have the tendency to take a lot of stress. जो एंक्शियस इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं. ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन है. द व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स विद इन द इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज सच एज वायरसेस. जैसे कोरोना वायरस है ना, तो एंटीबॉडी करते रहते हैं ना सब लोग, तो यही हमारे ल्यूकोसाइट करते हैं. ठीक है, it leads to the production of antibodies. There are several kinds of white blood cells or leukocytes within the immune system, including T cells, B cells, and natural killer cells. T cells destroy invaders, and T helper cells increase immunological activity. ठीक है, तो अब क्या होता है, stress can affect the natural killer cell cytotoxicity, which is of major importance against the various infections and cancer. ठीक है, reduced level of natural killer cell cytotoxicity have been found in people who are highly stressed, including students before facing important exams, bereaved persons, and those who are severely depressed. ठीक है, तो बहुत सीवियरली डिप्रेस्ड क्लिनिकल पॉपुलेशन है, या फिर एग्जाम से आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आप एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस फेस कर रहे हो, तो इन सब पॉपुलेशंस में इट हैज बीन फाउंड कि नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो आपकी साइटोटॉक्सिसिटी कम कर देते हैं. जो स्ट्रेस है वो नेचुरल किलर सेल्स की साइटोटॉक्सिसिटी डिस्टर्ब कर देता है, विच इज व्हाई योर इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक. नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मॉडिफाई दिस इज have good diet and exercise, because diet, exercise and stress, only these three things, and sleep of course, 4 things हैं that have been related to the functioning of the immune system. बाकी सब पे रिसर्च अभी है. okay, it's not fixed yet, but 100% diet, आपकी exercise, sleep and stress levels, इन चारों से आपकी immune system पे फर्क पड़ता है. So you can take care of the other 3 and also on the management of your stress levels, that will boost your immune system. ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में क्या है कि लाइफस्टाइल क्या होता है, इट इज द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर दैट डिटरमिन अ पर्सन्स हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. मतलब लाइफस्टाइल एक ये भी होता है कि एक बंदा है जो हाई कार्ब डाइट ले रहा है, ठीक है, हाई वेरी वेरी फैटी डाइट ही इज टेकिंग, ही इज नॉट कंट्रोलिंग एनीवेयर. गुलाब जामुन भी खाना है, पिज्जा भी खाना है, ये भी खाना है, एंड एक्सरसाइज भी नहीं करनी, एंड ही सिटिंग एट वन प्लेस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो लाइफस्टाइल. और लाइफस्टाइल ये भी होता है कि बैलेंस में जंक फूड के साथ न्यूट्रिशियस फूड भी खाना है, थोड़ा बहुत कार्ब्स भी ले लो, प्रोटीन भी ले लो, बैलेंस डाइट ले लो, और साथ में यू हैव टू एक्सरसाइज डेली और एटलीस्ट थ्राइस अ वीक. ठीक है, दिस इज ऑल्सो लाइफस्टाइल. ऑब्वियसली यू कैन गेस विच लाइफस्टाइल विल डिटरमिन अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जितना what will be the quality of the life that you are going to be living. तो दीज आर कॉल्ड लाइफ स्टाइल्स. ठीक है, तो आप क्या खा रहे हो, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, ऑल दिस फॉर्म्स योर लाइफ स्टाइल. सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग कि योर लाइफ स्टाइल हैज बीन हेविली लिंक्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम. ठीक है, नाउ अच्छा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं पैथोजेंस के, विच आर एजेंट्स कॉजिंग फिजिकल इलनेस. जैसे कि अगर आप किन्हीं ऐसे एरियाज में रह रहे हो जहां पे न्यूक्लियर जो रेजिड्यू है वो ज्यादा है. इनफैक्ट इन सम एरियाज ऑफ रशिया इट हैज बीन फाउंड दैट जहां पे आई थिंक शर्नोबिल में भी, जहां पर एक न्यूक्लियर हमारा वो हुआ था एक्सीडेंट, वहां पर a lot of nuclear radiation is found in the ground. So such pathogens can also affect the functioning of your mind and can affect your immune system. That has been discussed here. ठीक है, studies have revealed that help promoting behavior like balanced diet, regular exercise, family support play an important role in good health. Okay, so these are the lifestyle changes. और हाँ, one of the most important lifestyle changes you can make to reduce stress is quit smoking and alcohol, because ये दोनों lifestyle changes से भी बहुत सारे diseases का link होता है and it really hampers your immune system. ठीक है, अब हम next part पे आते हैं, that is coping with stress. Coping क्या होता है? Coping is a dynamic situation specific reaction to stress. Dynamic मतलब changeable and situation specific response to stress. For example, अगर मुझे एग्जाम एंजाइटी से कोप करना है तो मे बी आई विल कीप अ शॉर्ट पेज ऑफ डॉट पॉइंट्स विद मी, जिनको मैं देख लूंगी एक बार और देखते ही मुझे एंजाइटी मेरी कम हो जाएगी कि नहीं मुझे आता है, आई हैव मेड दीज नोट्स. ठीक है,
वर्सेस अगर वो डॉग वाला सिचुएशन है वेयर डॉग इज ट्राइंग टू बाइट मी, मे बी आई विल पिक अप समथिंग एंड ट्राई टू स्केयर द डॉग अवे, दैट इज अ कोपिंग सिचुएशन। ठीक है, इसमें 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड क्या होती है? इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेसफुल इवेंट एंड अबाउट द ऑल्टरनेटिव कॉसेज ऑफ एक्शन एंड देयर प्रोबेबल आउटकम। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग प्रायोरिटीज एंड एक्टिंग एज टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम की स्ट्रेस से कोप करना है, दिस इज द गुड स्ट्रैटेजी, टास्क ओरिएंटेड। किस चीज का एग्जाम है? साइकोलॉजी का। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? इतने आ रहे हैं। एक चैप्टर में मैं कितना टाइम स्पेंड करूंगी? इतना। उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस कर लूंगी हेल्प बुक से इतने टाइम में। दिस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इज कि आप पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर पता कर रहे हो, उस स्ट्रक्चर से आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना रहे हो कि मैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बना के इस टास्क को मैं डिफीट कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। Another strategy to deal with a stressful situation is अपने आप को समझाना, that we will be able to deal with it. ठीक है, involving efforts in maintaining hope and control one's emotions. It can also involve venting feelings of anger and frustration. For example, that जब आपको स्ट्रेस ज्यादा हो गया है और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो गई है, तो आप अपने फ्रेंड को फोन करके 15 मिनट्स यू कैन टॉक टू देम एंड टॉक अबाउट हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, एंड उनके लिए भी डिफिकल्ट है, सो यू गाइज कैन वेंट आउट फीलिंग्स टू ईच अदर। दिस इज एन इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बिकॉज इससे ना आपका इमोशन स्ट्रांग हो रहा है, योर मॉरल बूस्टअप एंड कॉन्फिडेंस इज बिल्डिंग अप। ठीक है, ये हो रहा है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या होती है? डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। इन द बोर्ड एग्जाम्स एग्जाम्पल, इफ समवन वाज टू से, देखो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपने लाइफ में आगे करना क्या है उससे। ठीक है, देन दैट वुड बी अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो जो भी थ्रेट है उसको अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कह रहे हैं कि इतना बड़ा है ही नहीं है थ्रेट, डिनाई करना। ठीक है, सिमिलरली प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशनल फोकस्ड भी आपकी कोपिंग हो सकती है। प्रॉब्लम फोकस्ड क्या होता है? अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया था, शेड्यूलिंग करना, प्रॉपरली चैप्टर्स में टाइम डिवाइड करना, उनको प्रिपेयर करना। और इमोशन फोकस्ड क्या होती है? डिजाइन टू प्राइमरी लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द इवेंट। तो मतलब वेंटिंग करना कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस था, बहुत परेशानी हुई, बट चलो हो गया, वेंटिंग फीलिंग्स आउट एंड सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू डील विद योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। वन ऑफ देम इज रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें होता है JPMR, जेकब्सन्स रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, दैट इज वेरी वेरी गुड। इससे बहुत अच्छा होता है। इट इज बेसिकली इट इज एन एक्टिव स्किल दैट रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ इलनेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। अगर आप रिलैक्सेशन करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, योगा, ऑल दीज आर रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मेडिटेशन प्रोसेस क्या होता है कि एक ध्यान अपनी जगह, एक जगह पे फोकस करके एंड मेडिटेट करना। टू it's a yogic process that consists of a sequence of learned techniques for refocusing the attention that brings about an altered state of consciousness. So you have to focus your attention on a certain object or theme. ठीक है? Biofeedback क्या होता है? It is used to monitor and reduce physiological aspects of stress by providing feedback about current physiological activity. For example, अगर किसी का हार्ट बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, then you can put a stethoscope and say, देखो नहीं अब इतनी पहले जितना कर रहा था अब उतना नहीं कर रहा है, सो दैट पर्सन विल लिसन टू इट एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग लेस स्ट्रेस्ड। तो उनका हार्ट कम जल्दी जल्दी बीट करना शुरू कर देगा और कम हो जाएगा। इट विल सून कम बैक टू नॉर्मल रेस्टिंग, जो हमारा हार्ट का रेट होता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है? इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक। इट इज बेसिकली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूजेस इमेजरी एंड इमेजिनेशन। मतलब आप आंखें बंद करके इमेजिन करो दैट यू आर इन अ फील्ड, और इमेजिन करो दैट यू आर इन अ प्लेस वेयर यू आर सराउंडेड बाय योर लव्ड वंस। ये होता है विजुअलाइज करना माइंड में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, जो ये हमारी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स। मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है? अगर मुझे स्ट्रेस, जब भी मुझे ये वाला सिम्टम आता है, तो मैं कैसा बिहेव करता हूँ? ऐसा बिहेव करता हूँ। अपना ही बिकमिंग योर ओन थेरेपिस्ट, बिकमिंग योर ओन साइंटिस्ट, और अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके, एसोसिएटेड बिहेवियर्स को निकाल के, उस सिचुएशन को समझ के, प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग दैट स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज। दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। रनिंग, वॉकिंग, गोइंग आउट, or playing any kind of sport, it will really help you reduce stress. It is one of the most effective ways in dealing with stress. इससे आपका immune system भी बहुत अच्छा boost होता है। Okay, फाइनल लास्ट हेडिंग हमारी जो है दैट इज प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, जो हमने कहा था ना कि इन दिस चैप्टर विल स्टडी हाउ टू कोप विद स्ट्रेस,
दैट इज दिस पार्ट. तो हार्डीनेस की बात हुई है यहाँ पे, दैट इज अ पर्सनालिटी ट्रेट विच कंसिस्ट ऑफ कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. मतलब जो आपको करना है उसके लिए आपकी कमिटमेंट, दैट मीन्स योर बाइंडिंग टुवर्ड्स इट, एंड कंट्रोल मीन्स की एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, एंड चैलेंज करना मतलब ability to face challenges and ability to challenge yourself to do new things. So let's come to life skills, जो हमारा next topic है. First we study about assertiveness. Assertiveness होता है behavior or skill that helps to communicate clearly and confidently. Assertiveness का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि किसी ने आपसे पूछा कि may I please borrow your psychology textbook one day before your exam. Your answer should be no because I want to study. ये होता है assertiveness का एग्जाम्पल. मतलब क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली किसी को बोलना कि नहीं, लर्निंग टू से नो. सो दैट इज बीइंग असर्टिव. अगर आप बहुत ही सॉफ्ट हो तो आप नहीं बोल पाओगे दैट ओके मे बी यू कैन टेक इट, मे बी यू फाइंड इट लेस स्ट्रेसफुल टू गिव समवन योर टेक्स्ट बुक एंड देन परचेज अनदर वन ऑन द सेम डे, बट दैट वुड नॉट बी, दैट इज एन अनअसर्टिव बिहेवियर. ठीक है. अबिलिटी टू से नो कॉन्फिडेंटली, क्लियरली, अबिलिटी टू कीप योर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ समवन, दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस. ठीक है. स्पेशली इन अथॉरिटी फिगर्स ऑल्सो. अगर आपका बॉस आपको कुछ गलत कह रहा है तो उसको ये बात बोलना कि नहीं, आई डू नॉट अग्री विद दिस, दैट इज असर्टिवनेस. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट होता है कि जैसे आपका पेपर भी होता है, टाइम मैनेजमेंट मतलब 80 मार्क्स का पेपर है, इतना टाइम मुझे शॉर्ट आंसर्स को देना है, इतना टाइम मेरे को लॉन्ग को देना है, इतना टाइम एमसीक्यू को देना है. टाइम को मैनेज करना. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. रैशनल थिंकिंग क्या होती है? द एबिलिटी टू थिंक ऑब्जेक्टिवली, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देखना. डिस्टॉर्टेड थिंकिंग क्या होती है? अगर मेरे बोर्ड में इतने मार्क्स नहीं आए तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. ऐसा नहीं है. मे बी इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर दैट मच, मे बी इट विल इफेक्ट योर लाइफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट दैट डज नॉट मीन दैट योर लाइफ शुड एंड देयर, राइट? दिस इज डिस्टॉर्टेड थिंकिंग. रियलिटी बेस्ड थिंकिंग क्या है? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्कोर इन द बोर्ड एग्जाम्स, बट व्हाट फॉरबिड इफ 1 or 2 मार्क्स गो हियर एंड देयर, देन आई विल स्टिल बी एबल टू डू समथिंग गुड इन माई लाइफ. ठीक है. इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स. अगर आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पियर्स के साथ जो आपके रिलेशनशिप उनको इंप्रूव करोगे, देन दैट विल बी ग्रेट फॉर योर स्ट्रेस लेवल्स एंड लाइफ. दिस इज अ वेरी गुड लाइफ स्किल. ठीक है. सेल्फ केयर मतलब अपना ध्यान रखना. इफ यू आर अनकंफर्टेबल इन सम सिचुएशन, डोंट गो. प्रैक्टिस एक्सरसाइज, गुड डाइट एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. और एज आई सेड कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लो. स्टेइंग हैप्पी, स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सेल्फ केयर. ठीक है. Overcoming unhelpful habits. One of the examples of this is smoking and drinking. आप उसको क्विट कर सकते हो. Procrastination, आज का काम कल कि I'll do it tomorrow. This is a very unhelpful habit for you because this will cause a lot of ऐसा होगा ना, आप आज का काम कल करते करते the deadline will appear and then one day before the deadline you will feel extremely stressed. So this is an unhelpful habit. Overcoming procrastination. ठीक है. Then there's obviously diet, जिनके इसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं. दैट अ बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन भी एक करेक्ट अमाउंट में है, कार्ब्स करेक्ट अमाउंट में है, कटिंग ऑफ नहीं है, मतलब शुगर भी है, हर चीज अच्छे से बैलेंस्ड अमाउंट में है. जंक फूड के साथ बैलेंसिंग करना मुश्किल है कि नॉट एवरी डे यू आर हैविंग बर्गर्स एंड पिज्जाज, यू आर हैविंग योर सैलड्स, योर सूप्स, है ना. दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज में फिजिकली फिट रहना, रनिंग, प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, वॉकिंग, और एक्सरसाइजिंग कैसे भी, डूइंग पिलाटीज और whatever your schedule is, that's all good. नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कोई भी चैलेंज आ रहा है लाइफ में या समवन इज बीइंग रूड टू यू, स्टिल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स देम कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है. दैट इज अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड. नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग. ये हो गया हमारा एटीट्यूड. थिंकिंग क्या होती है? पॉजिटिव कि कोई बात नहीं, इट इज ऑफ अ शॉर्टर स्पैन देन एन एटीट्यूड. ठीक है. ये फर्क है पॉजिटिव एटीट्यूड और थिंकिंग में. पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि वैसे तो पॉजिटिव थिंकिंग लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी के लिए वो करना. फॉर एग्जाम्पल कोई फायर हो गया, तो अगर कोई फायर भी हो गया है तो वो बंदा यही सोच रहा है कि इट्स ओके इफ आई गेट फायर फ्रॉम दिस प्लेस, इट्स ओके, आई विल फाइंड माई जॉब समवेयर एल्स वेयर आई विल हैव बेटर पीयर्स एंड बेटर बॉसेस टू वर्क विद. देन दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग, इट्स अ वेरी गुड लाइफ स्किल टू मेंटेन. ठीक है. जो रोंदू होते हैं, कहते हैं ना, यू क्राई अलोन and when you laugh, everyone laughs with you. So this is how life is. If you are sitting in a corner and cribbing about life, then people will not want to interact with you, or even life will appear like a very dark place to you. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. Social support is important, which is our last topic also. Social support में आपका perceived support, that is quality of social support. Social network, that is quantity of support, है ना. कितने friends हैं versus किस quality के friends हैं.
ये दोनों उस वाले में आ गए. टैंजिबल सपोर्ट जैसे कि मनी, गुड्स, सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो यू हैव द एक्सेस टू मोबाइल फोन और लैपटॉप वे यू कैन एक्चुअली डू द ऑनलाइन क्लासेस. दैट्स अ टैंजिबल सपोर्ट. इंफॉर्मेशन सपोर्ट मतलब जैसे कि अगर किसी भी बच्चे को ये जानना है कि बोर्ड एग्जाम कैसा होगा तो वो सैंपल पेपर देख सकता है. दैट इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन सपोर्ट. ठीक है. इमोशनल सपोर्ट दैट आर फ्रेंड्स प्रोवाइड, फैमिली प्रोवाइड. ठीक है. कि हाउ मेकिंग यू फील लव्ड, वैल्यूड, केयर्ड फॉर, ऑल दिस कम्स एज अ पार्ट ऑफ इमोशनल सपोर्ट. ठीक है. So these were the various kinds of life skills that we did, and here this chapter ends. I really hope that you like this chapter and you don't stress yourself while doing it. And if you have any questions, feel free to leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for watching.